Welcome back to my channel. Now in this video we are going to discuss the themes of Godan, and if you like the content then please like, share and subscribe my channel. Now the question is, describe the themes highlighted in the novel Godan. So, Godan is a masterpiece novel of Premchand, who is considered one of the finest writers in modern India, and Munshi Premchand wrote a number of novels and short stories in Hindi and Urdu language. He mainly highlighted the realities of the contemporary life in his writing, and his motive of writing was to bring social reforms. Again, he has presented a real picture of rural India as he was a great social reformer, and he has presented the real picture of rural India before independence in Godan. सो कभी भी हमें इंट्रोडक्शन देना रहता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं दैट गोदान इज़ अ मास्टर पीस नावल और अ वेरी फेमस नावल ऑफ मुंशी प्रेमचंद. देन मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताते हैं. सो वी विल डिस्क्राइब अबाउट प्रेमचंद दैट ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर of the period. Okay, so and he wrote then we give a brief description about the writer, that he has written a number of novels and short stories in Hindi and Urdu language. सो मुंशी प्रेमचंद जो थे वो मेनली हाईलाइट किए हैं रियलिटीज़ को, सच्चाई को उन्होंने अपने राइटिंग्स के थ्रू दिखाया है. और वो एक बहुत ही ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे. तो उन्होंने गोदान में एक रियलिटी जो थी उस समय की रूरल इंडिया की बिफोर इंडिपेंडेंस, उस चीज़ को उन्होंने प्रेजेंट किया. सो देर आर नंबर ऑफ थीम्स विच इज़ हाईलाइटेड बाय प्रेमचंद, okay, in Godan. Okay, now first one is the discrimination of caste. Okay, it is one of the most important theme we can say, which is presented by the Premchand, okay, in Godan. Now here we see the Brahmin priest whose name was Data Din. Okay, he represent the upper caste. Okay, तो वो अपर कास्ट से बिलोंग करता है एंड ही एक्सप्लॉइट करता है वो लोअर कास्ट के पीपल को. जैसे उन्होंने होरी को he penalizes he penalizes Hori for giving shelter to a lower caste girl Junia and accepting her as their daughter in law. तो जब होरी जो है वो झुनिया को जब वो अपनी डॉटर इन लॉ बनाता है तो उसके लिए जो दाता दिन जो है उसको फाइन करता है होरी को कि वो एक लोअर कास्ट की लड़की को वो अपने घर में जगह दे रहा है और उसको एक्सेप्ट कर रहा है एज अ डॉटर इन लॉ. So in this way he exploit the lower caste people. Okay, so Hori, Bhola, okay, Bhola is a cowherd, Celia, then she is also a cobbler's daughter. So these characters represent the lower caste in the society and he exploit those lower caste villagers. Okay, so Premchand has drawn a real picture of the low caste and poor peasants exploited by the village zamindar and greedy money lenders. So हमने गोदान में यही देखा है कि लोअर कास्ट को क्या किया जाता है, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है लोअर और अपर कास्ट के लोगों में, और फिर से उनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है. तो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जैसे विलेज के जो ज़मींदार्स हुए, ग्रीडी मनी लेंडर्स हुए. तो इन्हीं सब चीज़ को उस समय के टाइम में जो होता था उस प्रेमचंद जी ने उसी चीज़ को एक रियलिटी के थ्रू, एक रियल पिक्चर के थ्रू, गोदान के थ्रू दिखाया है. रियल पिक्चर मतलब गोदान के थ्रू रियल पिक्चर को दिखाया कि उस समय क्या होता था. देन द सेकेंड थीम वॉज द प्रैक्टिस ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड इट्स एबॉलिशन. सो उस समय जो थी जमींदारी सिस्टम का जो प्रचलन था उसका, तो वो चीज़ भी दिखाया है. वो भी एक थीम है, इम्पॉर्टेंट थीम है नॉवल का. एंड द विलेज जमींदार्स
and money lenders collect the revenue and impose the fine against poor villagers as they are illiterate and financially weak to face such injustice and antisocial practice in the society, and attempted to awaken the poor people against the exploitation through this law. So इसमें जमींदारी सिस्टम जो था, जिसमें जो ज़मींदार जो रहते थे विलेज के, वो क्या करते थे कि वो मनी लेंडर्स हुए, ज़मींदार जो हुए विलेज के, वो रेवेन्यू पीजेंट से जो थे वो रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे और उन पे फ़ाइन भी वो लगाते थे पुअर विलेजेस पे, क्योंकि वो देखते थे कि वो इलिटरेट है, फाइनेंशियली वीक है, तो मतलब उनके साथ बहुत इनजस्टिस करते थे। सो इस टाइप के एक्सप्लॉइटेशन को दिखाया गया है इस नावल में कि कैसे वो एक्सप्लॉइट करते थे। और इस टाइप के एक्सप्लॉइटेशन को दिखा करके उन्होंने मतलब उन्होंने एक अटेम्प्ट लिया है कि एक पुअर पीपल को अवेकन करवाएं, जागरूक करवाएं अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉइटेशन थ्रू दिस नॉवल। ओके, नाउ देन द नेक्स्ट थीम इज़ दैट द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी। जैसे हमने गोदान में देखा होगा कि जो वुमेन कैरेक्टर्स जैसे धनिया, जूनिया, सीलिया एंड रूपा, दीज वुमेन कैरेक्टर्स आर एक्सप्लॉइटेड और टॉर्चर्ड बाय द मैन दे लव। जैसे माता दिन डिसीव सीलिया, रूपा इज़ मैरिड टू एन एजेड मैन, देन धनिया जो है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है बाय होरी इन मेनी ऑफ द केसेस और इन मेनी टाइम्स। ओके, then Junia also gets flirted by Goa. Premchand has given a lesson in the present novel that society cannot get progress if a part of the society is neglected, humiliated and suppressed. So प्रेमचंद ने सिंपल कहा है कि अगर सोसाइटी प्रोग्रेस करना चाहता है लेकिन वो किसी सोसाइटी के ही पार्ट को वो निगलेक्ट कर रहा है या ह्यूमिलेट कर रहा है, सप्रेस्ड कर रहा है, दैट मीन्स वुमेन आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वुमेन आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. So if they are going to be neglected, humiliated and suppressed, then how can the society get progressed? So उन्होंने यही लेसन देना चाहा है कि दैट सोसाइटी मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट वुमेन, देन द सोसाइटी विल गेट प्रोग्रेस्ड. ओके, now the next theme is the tragedy of Indian peasantry. So the novel concentrates on the poor economic condition of the Indian peasants. So the next theme was a tragedy, that means the helplessness and the suffering of the Indian peasants. ये जो है एक इम्पॉर्टेंट थीम है. जो नावल जो है अगर देखा जाए तो नावल देखेंगे कि कैसे इंडियन पीजेंट की एक कितनी बुरी हालत थी, इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब थी. इस पे भी नावल ने दर्शाया इस चीज़ को. नाउ इनफैक्ट गोदान डिपिक्ट्स द ट्रेजेडी ऑफ इंडियन पीजेंट्री. अगर देखा जाए तो उसमें एक इंडियन पीजेंट्री का, एक फार्मर का ट्रेजेडी को ही दर्शाया है गोदान में. लाइक होरी, जस्ट फॉर एग्जांपल, होरी एक पीजेंट है एंड ही इज़ अ गॉड फियरिंग मैन. वो एक गॉड फियरिंग मैन है जो कि वो कभी सोच नहीं सकता कि किसी भी ट्रेडिशन या वैल्यूज़ या कस्टम को वो वायलेट करे या उसकी अवहेलना करने. और उसको वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में ब्रॉटअप हुआ है जहाँ पे रिजिड ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीव्स के साथ वो आया है. सो ही कैन नॉट थिंक ऑफ वायलेटिंग द ट्रेडिशन, वैल्यूज़ एंड कस्टम्स. सो वो साइलेंटली सब चीज़ को वो सहते जाता है, सहता है. कुछ भी इनजस्टिस इसको भी एक्सप्लॉइटेशन बाय द मनी लेंडर्स, जैसे मनी लेंडर्स का एक्सप्लॉइटेशन हुआ. सो द मनी लेंडर्स जो हैं और उनसे रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, उन पे फ़ाइन इम्पोज करवा रहे हैं जो कि गलत है, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उनको. सो राय साहब जो है यहाँ पे वो होरी को फ़ाइन करते हैं फॉर द डेथ ऑफ द काउ. क्या काउ वो खुद से मर गया तो वो क्यों होरी पे चार्ज कर रहा है? सो he is imposing fine, he penalizes Hori. So this is a exploitation of peasant. So the peasants are unable to pay debts in time. और ये छोटे बैकग्राउंड से हैं, इनके पास पैसे की कमी है. सो ये उस कर्ज को वो
उधारी को वो टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं, और वो जो मनी जो है वो मल्टीप्लाई होते जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इट गेट कन्वर्टेड इनटू अ बिग अमाउंट, सो दे आर अनेबल टू पे that big amount. So here we see the helplessness and the suffering of the Indian peasants, which against the powerful money lenders and the landlords. So it is the leading theme in Godan. Now the next theme is the theme of love. Now the novelist highlight the theme of love through Mr. Mehta and Mrs. Malti. Okay, and they transcends the limitations of life, and they stand for the essential goodness of human heart. Now there are more relationships, we will look them also. They believe that love is pious and sacred feel. Through them, Premchand advocates reforms and social setup. Premchand also portrays interpersonal relationships, love and marriage. So वो लोग जो है वो बिलीव करते हैं कि लव जो है एक पायस, दैट मीन्स पवित्र है, ठीक है, एक सेक्रेड फीलिंग है, और थ्रू देम जो है थोड़ा वो रिफॉर्म करना चाहते हैं, दैट मीन्स थोड़ा सुधार लाना चाहते हैं सोशल के सेटअप में, ठीक है, जो हमारा सामाजिक सेटअप किया हुआ है। ओके, तो प्रेमचंद जो है यहाँ पे नॉट लव ही ओनली पोर्ट्रेज, ही ऑल्सो पोर्ट्रेज द interpersonal relationships and marriages also. As a progressive writer envisages a modern India where love and intercaste marriages would thrive. Okay, we have the intercaste marriages of Gobar and Junia, Mata Din and Celia, and that of the educated pair Rudra Pratap and Saroj. So Rudra Pratap and Saroj, and the marital relationship of Mr. Khanna and his wife is strained as he lacks love and respect for her. So यहाँ पर एक नहीं है, ओके, गोवर और जूनिया का भी इंटरकास्ट मैरिजेस था, माता दिन और सीलिया का भी इंटरकास्ट मैरिजेस था, फिर यहाँ पे एक एजुकेटेड पेयर है रुद्र प्रताप एंड सरोज, ठीक है, और जो रिलेशनशिप था मिस्टर खन्ना और उसकी वाइफ का, उसमें थोड़ा स्ट्रेंड देखा गया, डैट मीन्स थोड़ा तनावपूर्ण देखा गया उनका जो रिलेशनशिप था, बिकॉज वहाँ पे लव और रिस्पेक्ट का लैक था, दैट्स वाई. Now the next theme is the want and spirit of socialism. Okay, so it is also an important theme of the present novel. The novelist gives the message that socialism is the only hope for the Indian society for the greatest perspective and upliftment of the poor people in rural India. He says there is a big gap between rich and poor people in our country. As far as novelist is concerned, it is the duty of every prosperous individual to act for the social welfare. सिंपली थोड़ा समाज में जो है वो थोड़ा सोशलिज़म रहना चाहिए, उसका फीलिंग रहना चाहिए. तो नॉवलिस्ट ने वही मैसेज दिया है कि सोशलिज़म जो है अब वही एक होप है इंडियन सोसाइटी के लिए, जिससे थोड़ा बेटर और अपलिफ्टमेंट हो सकता है पुअर पीपल का, ठीक है, इन रूरल इंडिया. बिकॉज देयर इज़ अ बिग गैप, एक गैप बना हुआ है रिच और पुअर पीपल के बीच में हमारे कंट्री में. तो उस चीज़ को, उस गैप को फिल करने के लिए थोड़ा सोशलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है. सो जैसा कि एज फार एज द नॉवलिस्ट इज़ कंसर्न, जहाँ तक नॉवलिस्ट का कंसर्न है, वो ये कहना बता रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल का, एक प्रॉस्पेरस इंडिविजुअल का ये ड्यूटी है कि वो कुछ एक्ट करे फॉर द सोशल वेलफेयर. There are also some narrow domestic walls in the society against widow marriage and intercaste marriage, on which Premchand has given some revolutionary concepts in Godan. So which are also the notable theme of the present novel. So हमने गोदान में देखा होगा कि वहाँ पे जो है थोड़ा विडो मैरिज के बारे में भी है, ठीक है, विडो मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है. सो
दैट मीन्स वो एक नैरो हमारे जो सोसाइटी में क्या है, एक नैरो डोमेस्टिक वॉल्स है कुछ, ठीक है, विच इज़ अगेंस्ट ये सब के खिलाफ, मतलब थोड़ा छोटी सोच है ये सब चीज़ के कि ये सब के विडो मैरिज नहीं होना चाहिए, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये सब के मामले में बहुत ही नैरो सोच है, ठीक है। तो उस चीज़ को भी गोदान में दिखाया गया है, और उसमें भी जो ये सब जो भी है ये भी नोटेबल थीम है एक प्रेजेंट नावल का। जो नॉवलिस्ट जो हैं वो एडवोकेट किए हैं, डैट मीन्स वो एडवोकेटेड द वीडो मैरिज एंड इंटरकास्ट रिलेशनशिप। जैसे बोला जो था गोदान में, ही वांट्स टू मैरी अगेन एज अ विडोवर, वो विडोवर है, वो खुद शादी करना चाहता है, बट वो अपनी बेटी के मैरिज के खिलाफ है, जो कि उसकी बेटी खुद भी एक विडो है। सो दिस इज़ अ सोशल इनजस्टिस, ये एक तरह से सामाजिक इनजस्टिस है कि नहीं है, अगेंस्ट वुमेन टू प्रेमचंद, अकॉर्डिंग टू प्रेमचंद। ओके, सॉरी, इट इज़ मतलब अगर आप वो औरत है तो आप उसके अगेंस्ट हैं वो चीज़ के लिए, बट वो आदमी है तो वो सब सही है, तो ये क्या है, ये एक सोशल इनजस्टिस है। ये सब चीज़ प्रेमचंद ने दिखाया है। फिर उन्होंने अप्रूव्ड किया है इंटरकास्ट मैरिजेस को। ओके, here we see the intercaste marriages of माता दीन एंड सीलिया। ओके, माता दीन एंड सीलिया, क्योंकि माता दीन जो था एक ब्राह्मण था एंड सीलिया जो थी एक शेड्यूल कास्ट गर्ल थी, और इन्होंने क्यों शादी की, बिकॉज दे लव ईच अदर। सो ये स्ट्रांगली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। तो उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के वो थोड़ा प्रोटेस्ट किए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव तो नहीं होना चाहिए, इफ़ देयर इज़ अ लव। ओके, in this way we find a number of revolutionary ideas presented by Premchand in the present novel thematically in order to enlighten the society through innovative concept of life. इस तरीके से हम लोग गोदान में देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को प्रेजेंट किया है, ठीक है, गोदान नावल में। और मतलब इस नावल के थ्रू तो है थोड़ा सा आपको सोसाइटी में जागरूक भी फैलाया है कि जागरूक भी किया है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, विडो मैरिज को जो हम लोग अगेंस्ट रहते हैं वो हमें हमेशा अगेंस्ट नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ा रिफॉर्म लाने की, ये सब चीज़ में थोड़ा उन्होंने चेंजेस लाने की कोशिश की है। दैट्स ऑल, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।